आइज़िया 9 चैप्टर 10 चैप्टर पढ़ेंगे। यशायाह की भविष्यवाणी 9 अध्याय और 10 अध्याय पढ़ेंगे। इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से आइज़िया 9 चैप्टर 10 चैप्टर। धन्यवाद करते हैं आबा फादर गॉड। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में परमेश्वर ऐसी बातें हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं। आबा फादर गॉड, हमारी ज्ञान बुद्धि समझ के परे वाली बातें इसके अंदर लिखी रहती है। पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं पवित्र आत्मा हमारी मदद कर, हमें फिट एंड फिक्स कर। ये वचन हमारे लिए अनजान ना बने रहे। ये वचन हमारे अंदर हर प्रकार का काम करने के लिए हमारे अंदर खुल जाए और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा इन वचनों के आधार से हमें तो मोल्ड कर, मेल्ट कर, हमें तैयार कर, हमें उस शेप में लेकर आ, उस ऑर्डरलीनेस में लेकर आ जिसमें परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहता है। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन। आइज़िया चैप्टर 9। What joy shall be in the midst of afflictions by the birth and kingdom of Christ, judgments upon Israel for their pride, hypocrisy and their impenitency. First verse से पढ़ेंगे। Nevertheless, the dimness shall not be such as was in her vexation, when at the first he lightly afflicted the land of Zebulun and the land of Naphtali, and afterward did more grievously afflict her by the way of the sea, beyond Jordan, in Galilee of the nations. The people that walked in darkness have seen a great light. They that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined. Thou hast multiplied the nation and not increased the joy. They joy before thee according to the joy in harvest, and as men rejoice when they divide the spoil. For thou hast broken the yoke of his burden, and the staff of his shoulder, the rod of his oppressor, as in the day of Midian. For every battle of the warrior is with confused noise, and garments rolled in blood, and this shall be with burning and fuel of fire. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. The Lord sent a word into Jacob, and it hath ignited upon Israel. And all the people shall know, even Ephraim and the inhabitant of Samaria, that say in the pride and stoutness of heart, the bricks are fallen down, but we will build with hewn stones. The sycamores are cut down, but we will change them into cedars. Therefore the Lord shall set up the adversaries of Rezin against him, and join his enemies together, the Syrians before and Philistines behind, and they shall devour Israel with open mouth. For all this his anger is not turned away, but his hand is stretched out still. For the people turneth not unto him that smiteth them, neither do they seek the Lord of hosts. Therefore the Lord will cut off from Israel head and tail,
branch and a rush in one day. The ancient and honorable hears the head, and the prophet that teacheth lies hears the tale. For the leaders of this people cause them to err, and they that are led of them are destroyed. Oh Jesus. अगुओं की पहचान रखिए अच्छे से, किसके पीछे आप जाते हैं. ओके Therefore the Lord have no joy in their young men, neither shall have mercy on their fatherless. देखो, therefore the Lord shall have no joy in their young men, neither shall have mercy on their fatherless and widows, for everyone is an hypocrite and an evildoer, and every mouth speaketh folly. अगुओं की जिम्मेदारी है, देखा, पवित्रता और सच्चे मन से न्याय, धर्म, प्रेम के साथ परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करना है. उसका फ्लो कॉन्ग्रीगेशन पे आता है, उसका फ्लो उससे कनेक्टेड लोगों के अंदर आता है. अगर अगुआ लापरवाह है तो उसके पीछे चलने वाले परमेश्वर उनकी भी नहीं सुनता है. इसके लिए बहुत कम लोगों को कनेक्टेड रहिए. जिसकी अगुवाई में आप चल रहे हैं वो जांच पड़ताल कीजिए, वो सेवा करने वाला, सेवा करने वाली क्या सच में परमेश्वर के धर्म, न्याय, प्रेम, शांति में चल रही है या चल रहे हैं या नहीं. क्योंकि अगर आप उनको फॉलो करेंगे, बाद में परमेश्वर आपकी सुनेगा नहीं. ये एक कारण है प्रार्थनाओं का जवाब न आने का. ठीक है. For all this his anger is not turned away, but his hand is stretched out still. For wickedness burneth as the fire, it shall devour the briars and thorns, and shall kindle in the thickets of the forest, and they shall mount up like the lifting up of smoke. Through the wrath of the Lord of hosts is the land darkened, and the people shall be as the fuel of the fire. No man shall spare his brother, and he shall snatch on the right hand and be hungry, and he shall eat on the left hand, and they shall not be satisfied. They shall eat every man the flesh of his own arm. Manasseh, Ephraim, and Ephraim Manasseh, and they together shall be against Judah. For all this his anger is not turned away, but his hand is stretched out still. Chapter 10. Woe of tyrants, Assyria, the rod of hypocrites, for his pride shall be broken. A remnant of Israel shall be saved. First verse से पढ़ेंगे. Woe unto them that decree unrighteous decrees, and that write grievousness which they have prescribed, to turn aside the needy from judgment, and to take away the right from the poor of my people, that widows may be their prey, and that they may rob the fatherless. And what will ye do in the day of visitation, and in the desolation which shall come from far? To whom will ye flee for help, and where will ye leave your glory? Without me they shall bow down under the prisoners, and they shall fall under the slain. For all this his anger is not turned away, but his hand is stretched out still. O Assyrian, the rod of mine anger and the staff in their hand is mine indignation. I will send him against an hypocritical nation, and against the people of my wrath will I give him a charge, to take the spoil and to take the prey, and to tread them down like the mire of the streets. Howbeit the meaneth not so, neither doth his heart think so.
But it is in his heart to destroy and cut off nations, not a few. For he saith, Are not my princes altogether kings? Is not Calno as Carchemish? Is not Hamath as Arpad? Is not Samaria as Damascus? As my hand hath found the kingdoms of the idols, and whose graven images did extol them of Jerusalem and of Samaria, shall I not, as I have done unto Samaria and her idols, so do to Jerusalem and her idols? Therefore it shall come to pass that when the Lord hath performed his whole work upon Mount Zion and on Jerusalem, I will punish the fruit of the stout heart of the king of Assyria and the glory of his high looks. For he saith, By the strength of my hand I have done it, and by my wisdom, for I am prudent. And I have removed the bounds of the people, and have robbed their treasures, and I have put down the inhabitants like a valiant man, and my hand hath found as a nest the riches of the people, and as one gathereth eggs that are left, have I gathered all the earth, and there was none that moved the wing, or opened the mouth, or peeped. Shall the axe boast itself against him that heweth therewith? Or shall the saw magnify itself against him that shaketh it? As if the rod should shake itself against them that lift it up, or as if the staff should lift up itself, as if it were no wood. Therefore shall the Lord of hosts, send among his fat ones leanness, and under his glory he shall kindle a burning like the burning of a fire. And the light of Israel shall be for a fire, and his Holy One for a flame, and it shall burn and devour his thorns and his briars in one day, and shall consume the glory of his forest and his fruitful field, both soul and body, and they shall be as when a standard bearer fainteth. And the rest of the trees of his forest shall be few, that a child may write them. And it shall come to pass in that day that the remnant of Israel and such as are escaped of the house of Jacob shall no more again stay upon him that smote them, but shall stay upon the Lord, the Holy One of Israel, in truth. The remnant shall return, even the remnant of Jacob, unto the mighty God. For though thy people Israel be as the sand of the sea, yet a remnant of them shall return. The consumption decreed shall overflow with righteousness, for the Lord God of hosts shall make a consumption, even determined in the midst of all the land. Therefore, thus saith the Lord God of hosts, O my people that dwellest in Zion, be not afraid of the Assyrian. He shall smite thee with a rod, and shall lift up his staff against thee, after the manner of Egypt. For yet a very little while the indignation shall cease, and mine anger in their destruction, and the Lord of hosts shall stir up a scourge for him according to the slaughter of Midian at the rock of Oreb. And as his rod was upon the sea, so shall he lift it up after the manner of Egypt. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. He is come to Ayath. He is passed to Migron. At Michmash
He hath laid up his carriages. They are gone over the passage. They have taken up their lodging at Geba. Rama is afraid, Gibeah of Saul is fled. Lift up thy voice, O daughter of Galim, cause it to be heard unto Laish. A poor Anathoth Madmena is removed. The inhabitants of Gebim gather themselves to flee. As yet shall he remain at Nob. That day he shall shake his hand against the mount of the daughter of Zion, the hill of Jerusalem. Behold, the Lord of hosts, shall lop the bow with terror, and the high ones of stature shall be hewn down, and the haughty shall be humbled, and he shall cut down the thickets of the forest with iron, and Lebanon shall fall by a mighty one. हम यशाया की भविष्यवाणी पढ़ेंगे। 9 अध्याय, 10 अध्याय हिंदी में पढ़ेंगे। शांति का राजा, 9 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यर्दन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहेंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। देखो, ये सब बातें मसीही जीवन के बारे में बता रहा है। ओके, अन्य जातियों के लिए बता रहा है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे पहले वचन में, और यर्दन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। ठीक है, तो ये अन्य जातियों में ऐसा हो रहा है कि उनके बंधन तोड़ रहा है परमेश्वर, उनको अंधेरे में से उजियाले में ला रहा है, उजियाला उनके ऊपर चमक रहा है। यानी इसका मतलब गुड इंस्ट्रक्शंस उनके ऊपर खुल रहे हैं और वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि पहले बुरे इंस्ट्रक्शंस को, गलत इंस्ट्रक्शंस को, पाप के इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करते जा रहे थे, आइडल्स के इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो कर रहे थे, सैतानिक किंगडम के इंस्ट्रक्शंस को, सूचनाओं को वो फॉलो कर रहे थे। अब वो वैसा नहीं करते हैं। अब उनके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस ठहरा रहता है, ओके, पड़ा रहता है उनके माइंड के ऊपर, उनके चित्त के ऊपर, ध्यान में जो सूचनाएं अभी पड़ी रहती है, वो है परमेश्वर का वचन। ओके, परमेश्वर की व्यवस्था उनके ऊपर छाए हुए रहती है। उसी को कहा गया है उजियाला। और लगातार वो यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं, वो बड़ा उजियाला वो प्राप्त कर रहे हैं। ओके, और ये काम किया किसने है? अगर आपको ऐसा अनुभव आ रहा है कि आपको यीशु मसीह के बारे में मालूम पड़ रहा है, अगर आपको ये अनुभव आ रहा है कि आपको मालूम पड़ रहा है यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह ने क्या किया है, यीशु मसीह मेरे लिए क्या है, और मैंने यीशु मसीह के साथ संगति में रहकर कैसा होना है, अगर ये आपको मालूम पड़ रहा है, तो ये आपको डायरेक्ट परमेश्वर कांटेक्ट कर रहा है आपके साथ। आपको ये एक
इसका चिन्ह ये रहेगा कि आपको आपका जो प्रॉब्लम्स था वो सॉल्व होता जाएगा। आपके ऊपर जो दबाव था, जो प्रेशर था, डिप्रेशन था, तनाव था, जो भी अंधेरे ने आपके लाइफ में रखा हुआ था, जिसको आप पार नहीं कर पा रहे थे, जिसके पार आप हो नहीं पा रहे थे, जहाँ पे आपका कोई जवाब नहीं मिल रहा था, परमेश्वर उस जगह में से आपको पार कराएगा, जवाब देगा, आगे लेकर आएगा। ये कौन कर रहा है? ये खुद परमेश्वर कर रहा है। आपको ध्यान देना है, ओके। और उसका ये करने के कारण हमारे अंदर का आत्मा फ्री हो जाता है, ओके। हमारा खुद का मनुष्य आत्मा आज़ाद हो जाता है, हमारा प्राण आज़ाद हो जाता है। वो एक समय जो आज़ाद होने का जो समय है वो वचन 3 में लिखा हुआ है, ओके। वो वचन 3 में लिखा हुआ है, 3 और 4 में। जो आज़ाद हो जाता है इंसान, तो उसके अंदर का माहौल एकदम अलग हो जाता है। उसका आनंद भरा हुआ माहौल रहता है, दबा दबा माहौल नहीं रहता है, मुरझाया हुआ नहीं रहता है, ओझल हो रहा ऐसा नहीं रहेगा। और ना ही वो कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा होता है जो पाप और अंधकार के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो उससे दूर भागता है, ओके। ये सीक्रेट है कि यहाँ पे कुछ तो काम चालू हो गया है परमेश्वर का, ओके। कुछ तो परमेश्वर का हाथ उस जगह पहुँच चुका है जहाँ पर ये सब बातें हमको देखने को मिल रही है, ओके। जब भी आप किसी को बदलता हुआ देखेंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कोई तो गया है परमेश्वर की ओर से, स्वर्गदूत, कोई परमेश्वर का आत्मा चला गया है उस जगह में, और ये सब कुछ वो बना रहा है, सब कुछ वो तैयार कर रहा है मनुष्य के अंदर, ओके। ऐसे मनुष्य को गले लगाना है, ऐसे मनुष्य को आराम देना है, ओके। ऐसे मनुष्य का वातावरण और ज़्यादा अच्छा और सुंदर बनने के लिए प्रार्थना, मध्यस्थी में खड़ा रह के प्रार्थना करना है। ऐसे मनुष्य को टूटने नहीं देना है, आमीन। क्योंकि ये एक जगह रहता है जिसके अंदर परमेश्वर उसके ऊपर अपनी दया को, दृष्टि को लेकर आया रहता है। जैसा नूह के ऊपर परमेश्वर ने कृपा दृष्टि दिखाई, उसको बड़े फ्लड में से, बाढ़ में से बचा के रखा उसको और उसके परिवार को, वैसे ही अब्राहम के ऊपर दृष्टि लाई, उसको पीढ़ियों का विश्वास का पिता बना दिया, और परमेश्वर ने उसके जो लोथ था उसको भी बचा लिया, ओके। सदोम गमोरा के नाश में जाते समय उसको भी बचा लिया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यूसुफ को, उसके भाइयों को उसने बचाया। जब अकाल का समय पड़ गया था, उसका सारा भाइयों का परिवार समेत सब कुछ को उसने संभाला, ठीक है। तो हर एक इंसान जब परमेश्वर का उजियाला लेना शुरू करता है तो उसकी डेस्टिनी अब्राहम जैसे हो जाती है, उसकी डेस्टिनी यूसुफ जैसे हो जाती है, ओके। उसकी डेस्टिनी एक्सेलेंट स्पिरिट में चलना शुरू हो जाता है, ओके। एक्सेलेंट स्पिरिट, जो दानियल के विषय में लिखा है कि दानियल में उत्कृष्ट आत्मा रहती है, उत्तम आत्मा रहती है, ओके। वो आत्मा फिर शुरू हो जाता है, उसे हम कहते हैं मसीही इंसान, ओके। सिर्फ नाम मसीही नहीं होता है, इतना कुछ काम उसके अंदर हो रहा होता है, तब जाके उसको वो लेबल मिलता है कि ये मसीही इंसान है, ओके। 4 वचन से आगे, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ा। परमेश्वर तोड़ता है बंधन, ओके। परमेश्वर तोड़ता है, ध्यान देना, ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हर पहाड़ टल जाएगा, ओके। हर बंधन टूटते हैं, परमेश्वर की ओर से टूटते हैं। क्या आना चाहिए? उजियाला आना चाहिए, परमेश्वर का मोह हमारे अंदर होना शुरू हो जाना चाहिए, और परमेश्वर का मोह, परमेश्वर का उजियाला, मोह मतलब मूवमेंट,
मूवमेंट, माउथ नहीं, मूवमेंट। परमेश्वर का मूवमेंट आना चाहिए हमारे अंदर, परमेश्वर का आवाज़ हमारे अंदर सूचनाओं के साथ आना चाहिए। ये सब जब हमारे अंदर आता है तो हमारे बंधन टूटने लगते हैं। ओके, अगर आपको यीशु मसीह के बारे में समझ में आने लगा तो आपके बंधन टूटने लगे हैं। ओके, जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। ये परमेश्वर का धुन है हमारे लिए, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है। ओके, ये 5 वचन से लेकर जो दिख रहा है आपको, ये सब कुछ 5 से 7, ये सब कुछ यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये यीशु मसीह का, ये यहोवा परमेश्वर का धुन था कि वो हमारे ऊपर से बंधन तोड़ना चाहता था। देखो, जब हवा और आदम ने फल खा लिया था, उस समय वो मृत्यु के रास्ते को प्रवेश कर चुके थे। अनंत काल का मृत्यु, जहाँ पे कुछ फ्यूचर नहीं है, उसमें वो प्रवेश कर चुके थे। ओके, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा ही नहीं छोड़ा हमको, उसने हमको मृत्यु के रास्ते में से निकाल के, बचा के, फिर जीवन में प्रवेश कराया। यानी हम मनुष्य अपने ही ताकत और बल से गलत चुनाव कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर धुन रखता है हमारे बारे में। आप बोलेंगे मैं क्यों आया मसीह में, आप सोचेंगे मैंने क्या ऐसा अच्छा काम किया था कि ये परमेश्वर ने मुझे देखा। ओके, आप सोचेंगे मैं तो इतना बेकार इंसान था, मैं इतना बदतमीज इंसान था, फिर भी कैसे क्या मैं उद्धार में आया। ओके, तो आपके लिए परमेश्वर धुन रखा है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, आपके लिए धुन रखा है। जैसा एक दीवानगी रहती है, वो दीवानगी परमेश्वर ने आपके लिए रखी थी और इसके लिए आप मसीह में आए हैं। ओके, तो ये धुन है परमेश्वर का आपके लिए। इस्राएल के प्रति परमेश्वर का क्रोध, 8 वचन से आगे, प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा है और वह इस्राएल पर प्रकट हुआ है। देखो, हमें बोला गया है, क्या बोला गया है, हमें ये बोला गया है हम मसीह में है, मसीह हम में है। ओके, हम मसीह में है तो हम उस पोजीशन में है जहाँ पर मसीह रखा गया है। तो देखो, परमेश्वर ने मसीह को कहाँ रखा है, देखो कहाँ रखा है। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। हालेलुया, ये मसीह का प्लेस है। अगर हम मसीह में आ चुके तो हम इस प्लेस में पहुंचे हुए लोग हैं, जिसको परमेश्वर स्थिर करता है और संभाले रखता है। उसका धुन है ये, उसका ये पैशन है। ओके, तो हमारे जीवन के बारे में उसको चाहत है, हमारे बारे में वो सोचता है। ओके, हमको रास्ता मोड़ कर लेकर आने का प्लानिंग वो बनाता है। ओके, हमको पश्चाताप लाने का प्लानिंग वो तैयार करता है, हमको सफलता देने का प्लानिंग वो तैयार करता है, हमको छुटकारे देने का इंतज़ाम वो तैयार करता है। और हम इस पृथ्वी के ऊपर एक कारण देखते हैं सिर्फ, क्या हो गया, हाँ बीमारी चली गई, क्या हो गया, हाँ अब गरीबी हट गई, अब क्या हो गया, हाँ हमको अभी बहुत अच्छा लग रहा है,
और अब क्या हो गया, हमने बहुत सारी ब्लेसिंग्स पाई। ये सिर्फ हम कारण देखते हैं, किसी ने प्रार्थना किया और ये हो गया, किसी ने हमारे लिए डिवाइन हेल्प किया, ईश्वरीय मदद किया और हमारे लिए ये हो गया, किसी ने हम पर कृपा दृष्टि रखी और हमारे साथ ये सक्सेसफुल हो गया। ये सिर्फ कारण बनता है, लेकिन किया किसने, असल में रूट कहाँ है इसका, ये सब कुछ होने का जड़ कौन है, परमेश्वर है, जो आपके लिए धुन रखता है वो। आमेन। बहुत प्यारा परमेश्वर है हमारा। वो आपको गिनती नहीं करता है किसी भी गलत और अपराध के बोझ के नीचे, वो आपको गिनती करता है उसके धुन में आप किस प्रकार से उठा लिए जाते हैं, किस प्रकार से आपको वो ऊंचा करता है, वो उसकी धुन में आप गिनती किए जाते हैं। आमेन। इस्राएल के प्रति परमेश्वर का क्रोध। 8 वचन से आगे, प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा है और वह इस्राएल पर प्रकट हुआ है और सारी प्रजा को, एप्रैमियों और शोमरोन वासियों को मालूम हो जाएगा जो गर्व और कठोरता से बोलते हैं। ईंटें तो गिर गई हैं, परंतु हम गड़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। गुलर के वृक्ष तो कट गए हैं, परंतु हम उनके बदले देवदारों से काम लेंगे। इस कारण यहोवा उन पर रसीन के बैरियों को प्रबल करेगा। जब हम मसीह में आते हैं तो हमने अपने आप का भरोसा छोड़ देना है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, जब हम मसीह में आते हैं तो अपने तरीके जो थे, टेढ़े तरीके थे, जो अपनी समझ रखी थी हमने, जो खुद की समझ, खुद की ज्ञानी बुद्धिमानी से हम बहुत होशियारी दिखाते हुए बहुत कुछ जानते हैं ऐसे समझ के साथ चल रहे थे, वो हमारा घमंड था, मन की कठोरता थी। ओके, जब हमारे काम नहीं बनते हैं तो हम ऐसा ही सोचते हैं, जाने दो, कोई बात नहीं, प्रार्थना से नहीं बनाना तो हम सारा की तरह अब्राहम को बोलते हगार के पास चले जाएं और बच्चे को जने ताकि उसके लिए वंश आ जाए, है ना। तो हम गलत रास्ता अपने बुद्धि में से तैयारी शुरू करते हैं, जैसा हव्वा ने किया कि कोई बात नहीं है, चलो इसमें से तो फल खाने से कुछ भला ही होने वाला है, चलो कोई बात नहीं है, परमेश्वर नहीं दे रहा है तो ना सही, हम खुद जाके ले लेंगे। ओके, ये परमेश्वर को रिस्क दिलाता है माय फ्रेंड। आपका जितना आप सिंपल माइंड, जितना इनोसेंट और जितना परमेश्वर के सम्मुख सीधाई और खराई के मार्ग में ही बने रहेंगे, आप कुछ हो ना हो इस पृथ्वी के ऊपर, लेकिन परमेश्वर के तो आप डायमंड बन जाते हैं। आमेन। परमेश्वर के हाथों में आप डायमंड हो, ठीक है। तो ये डायमंड, ऐसा डायमंड आपके बुद्धि चला के उसके सुंदरता को खराब मत कीजिए। आपकी खुद की कठोर मन, टेढ़ी चालें चलाकर आप परमेश्वर के सुंदरता को खराब मत कीजिए, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे। बारह वचन से आगे, और उनके शत्रुओं को अर्थात पहले अराम को और तब पलिश्तियों को उभारेगा और वे मुंह खोलकर इस्राएलियों को निगल लेंगे। इसके लिए मसीही लोगों का अंत भी होने का कारण ऐसा ही रहता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने खुद के रास्ते ले लिए होते हैं, ठीक है, और फिर परमेश्वर उनको निकल जाने देता है या फिर परमेश्वर उनको परेशानियों में पड़े रहने देता है। हम हर एक परेशानी, हर एक परीक्षाएं इसी के कारण सहन करते हैं। हमारी हर एक दुविधा, हर एक लाचारी, हर एक हेल्पलेसनेस, असहायपन, हम यही कारण से सहन कर रहे हैं माय फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि हमने कठोर मन की इस्तेमाल किए, हमने टेढ़ी चालों को इस्तेमाल किया, हमने घमंड के चाल इस्तेमाल किए और हमने सोचा जाने दो, परमेश्वर नहीं करता है तो ना सही, हम खुद अपने दिमाग से कर लेंगे, ठीक है। और यही बात है कि परमेश्वर फिर हमको शत्रु के हाथ दे देता है। ध्यान रखना, यही कारण है हम फंस जाते हैं, जो जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ पर हम मुड़ जाते हैं। ओके,
और उनके शत्रुओं को अर्थात पहले अराम को और तब पलिश्तियों को उभारेगा और वे मुंह खोलकर इस्राएलियों को निगल लेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। तो भी ये लोग अपने मारने वाले की ओर नहीं फिरे और न सेनाओं के यहोवा की खोज करते हैं। इस कारण यहोवा इस्राएल में से सिर और पूंछ को, खजूर की डालियों और सरकंडे को एक ही दिन में काट डालेगा। पुरनिया और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर है और झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूंछ है, क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वे इनको भटका देते हैं और जिनकी अगुवाई होती है वे नष्ट हो जाते हैं। इस कारण प्रभु न तो इनके जवानों से प्रसन्न होगा और न इनके अनाथ बालकों और विधवाओं पर दया करेगा, क्योंकि हरेक भक्तिहीन और कुकर्मी है और हरेक के मुख से मूर्खता की बातें निकलती है। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है, क्योंकि दुष्टता आग के समान धधकती है और ऊंट कटारों और कांटों को भस्म करती है, वरन वह घने वन की झाड़ियों में आग लगाती है और वह धुएं में चकरा चकरा कर ऊपर की ओर उठती है। सेनाओं के यहोवा के रोष के मारे यह देश जलाया गया है और ये लोग आग की ईंधन के समान है। वे आपस में एक दूसरे से दया का व्यवहार नहीं करते। वे दाहिनी ओर से भोजन वस्तु छीन कर भी भूखे रहते और बाईं ओर से खाकर भी तृप्त नहीं होते। उनमें से प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी बाहों का मांस खाता है और मनुष्य अप्रैम को और अप्रैम मनुष्य को खाता है और वे दोनों मिलकर यहूदा के विरुद्ध है। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। हालेलुया। देखो, ये वचन में हमने इस भाग को लेकर प्रार्थना करना है, ठीक है। अन्य जातियों को जब प्रभु में लाना है तो प्रभु तेरा क्रोध शांत कर और तेरा क्रोध का काम जो तेरे हाथ से हो रहा है, जो बढ़ाया हुआ है, उसको अब तू पीछे ले ले, ताकि लोग चंगे हो जाएं और परमेश्वर के पास चले आए। जब तक परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर से हट नहीं जाता है तब तक वो मसीह यीशु में नहीं आएंगे। जब आपके प्रिय जनों के लिए प्रार्थना करने के विषय देते हैं तो ये प्रार्थना करने का विषय रहता है, ये रूट रहता है मेरा प्रेयर का। तो आपने, जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो इन वचनों में से आप समझिए कि मेरे प्रार्थना का बल कौन सा वचन है। ये वचन मेरे प्रार्थना का बल रहता है जब मैं अन्य जातियों को प्रभु में आने की प्रार्थना लगाती हूँ, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह सच में महान सर्वशक्तिमान है। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जैसा हमने मांगा वैसा तूने हमें इन वचनों के भेद सिखाए और परमेश्वर हमें इन वचनों के अंदर से होकर आने के लिए अनुग्रह किया। पवित्र आत्मा, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हमने जैसा मांगा वैसा तूने हमें फिट एंड फिक्स किया, ऑर्डरलीनेस में लाया। हम तुझे धन्यवाद करते हैं और भी हमें इस वचन पर ठहरे रहने के लिए हमारे चित्त में आज का समय संपूर्ण जो भी हमने मनन किए हैं, जो कबूली किया है, जो रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज को हमने पढ़ा है, जो कुछ परमेश्वर हमने आज तेरे वचन के अंदर से प्राप्त किया है, इस प्रार्थना के समय में प्राप्त किया है, सब कुछ पिता आज हमारे चित्त में ठहरा रहे और परमेश्वर को 100% फलों को लेकर आए। मेरे खुदा, आज जो हमको करना चाहिए वो सब कुछ में मसीह यीशु में हम करें, ऐसा अनुभव हमें दे। नासरी यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा तुझे धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना करते हैं पिता, स्वर्गीय पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 years बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 24 chapter 13 verse से 27 verse, 2 Samuel 17 chapter 18 chapter। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 13 वचन से 27 वचन तक और दूसरा शमूएल की पुस्तक 17 अध्याय 18 अध्याय। हम 2 साल का बाइबल रीडिंग, 2 years बाइबल रीडिंग प्लान अपने अकेले में
पर्सनल व्यक्तिगत समय में पढ़ेंगे और ये हम परमेश्वर चाहता है उस प्रकार से प्रकाशनों को प्राप्त करते हुए पढ़ते जाना है, नोट्स बनाना है और उसके अनुसार हमारे जीवन को चलना है। जब हम ऐसा करते जाएंगे तो हम पवित्र आत्मा की सहायता और अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर जैसा हमको चाहता है उस शेप में, उस आकार में हम ढल कर चले आएंगे। ये मौका हमने नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमको कौन से पद पर परमेश्वर उठा कर रखना चाहता है। हम नहीं जानते हैं किस घर में, किस परिवार में हमारा कैसा आदर होने वाला है, किस प्रकार से हमारी महिमा परमेश्वर करने जा रहा है, कौन से स्थान में परमेश्वर हमें अपनी रोशनी के नीचे हमें चमकाने वाला है। कोई हिस्से हमारे पता नहीं कौन से अंधकार में थे, अब वो उजियाले में आने जा रहा है। क्या क्या परमेश्वर बदलने जा रहा है, अब हम नहीं समझ सकते हैं इस बात को जब तक कि हम परमेश्वर को अकेले बैठकर वचन पढ़ने का समय नहीं लगाते तब तक। तो आप दुनिया में सब कुछ में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये काम में अगर आप पीछे रह जाते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो बहुत लॉस है, बहुत ज़्यादा आप अपने लाइफ का नुकसान करते हैं। आप मत कीजिए ऐसा। आप अकेले में बैठकर परमेश्वर को समय लगाइए और आप प्राप्त कीजिए परमेश्वर से, उसके अनुसार अपने जीवन को जिए और आप जो परमेश्वर आपको देना चाहता है उसको आप लीजिए माय फ्रेंड्स, लीजिए उसको। वो इतना प्यारा परमेश्वर है, वो आपके विषय में धुन रखा है, बनाने दीजिए उसको, जो वो चाहता है उसको बनाने दीजिए आपको। ओके, और ऐसा होते हुए हम देखेंगे 2 साल के अंत में परमेश्वर जैसा चाहता है उस दिशा में, उस रास्ते में, उस डेस्टिनी में हम पहुंच चुके होंगे। और ये होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह का आत्मा दिया है। निश्चित हमने इस अनुग्रह के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर कि तूने हमारा जीवन बदल दिया है, हमारे रास्ते तूने तैयार किए हैं, हमको जहाँ होना चाहिए वो सब कुछ में तूने हमें बिठा दिया है। हमें और मजबूत और ताकत दे और बल दे और हम में अपनी धुन उंडेल दे कि हम भी तेरे पीछे धुन के साथ दौड़ते रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें व्यवस्थित कर पवित्र आत्मा, हमें ऑर्डरलीनेस में लेकर आ, हमें फिट एंड फिक्स कर पवित्र आत्मा इन वचनों के अंदर से। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।